Morning students, this is Chandan Singh, your maths teacher. Today we will discuss the chapter real number. Okay, in real number we will discuss about fundamental theorem of arithmetic. As we know that the first topic of this chapter is Euclid's division lemma, and that topic has been deleted by CBSE. So according to new syllabus, our first topic is the fundamental theorem of arithmetic. Okay. Now in this topic we will discuss about theorems which is related to factorization. Okay, we will discuss factorize few numbers. Like we will let's take one number 8190 and we will factorize it by 3 method. Okay, so by 3 method, here the number is 2 because at last number is 0 and which is divisible by 2. So first number is 2 and the second factor is 4095. Okay, now we will factorize this number. So this number will be divisible by 3. Okay, so 3 and the second factor is 3 ones are 3, 1 and 0 9 10. So 3 3s are 9, 1 and 9 90. So 3 6 are 80, 1 and 5 15. So 3 5s are 15. Now we will factorize this number by 3. So 3 5s, 3 4s are first factor is 3 and second factor is 3 4s are 12, 1 and 6 16, 3 5s are 15, 1 and 6 5 15. So 3 5s are 15. Now we will again factorize this number by 5. Okay, so 5 9s are 45 and 5 ones are 5. Again it is divisible by 7. 7 13s are 91. So last factor is 7 and 13. So if we discuss for their factors, so 8190 is the factor are 2 into 3 into 3 into 5 into 13. So these are the factors. In any number there are can be many times a single number can be comes. Okay, like 3. 3 is here is 2 times. Okay, so we will write it as 2 into 3 power 2 into 5 7 into 13. Okay, so this is the theorem, and this theorem is called फ्रेडरिक गॉस. ये थ्योरम किसने दिया था? फ्रेडरिक गॉस ने दिया था. ठीक है, अब हम इसी तरह से एक्सरसाइज को जब हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करनी होगी फैक्टराइज करके. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 1.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स में आपको इस नंबर को एक्सप्रेस करना है, और जिसमें से फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 140. तो अब हमें 140 को फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन बाय ट्री मेथड. 2 into 70. okay, same as 2 and 35, 5 and 7. So the factors of 140 is equals to 2 into 2 into 5 into 7. Okay, so we can
questions. Okay. Now the second question is, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक और टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, एक फॉर्मूले को, कि किस तरह से किसी भी दो नंबर्स का जो हमारा LCM और HCF होता है, HCF into LCM is equals to product of two numbers, product of numbers. अब यहाँ पे ये देखिए ये नंबर्स होते कौन से, तो ये नंबर वो होंगे जिनका हमने HCF और LCM फाइंड किया होगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए देखते हैं. देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Okay, so here the factor of अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 3. और जब हम बात करेंगे 20 की, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 5. ठीक है, so okay, highest common factor means जो सबसे ज्यादा हमारा लोएस्ट टर्म होगा किसी भी टर्म फैक्टर में, जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वही हमारा HCF होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 है और यहाँ पर हमारा 2 पावर 2 into 2 है. ओके, तो जो सबसे कम यहाँ पे फैक्टर्स होंगे वो हमारा क्या है, 2. और ठीक है, so the LCM HCF of the HCF means highest common factor. तो दोनों ही फैक्टर्स में आप देखेंगे जो भी नंबर हमारा दोनों ही नंबर पे कॉमन आया होगा और वो हमारा क्या है, 2. दोनों ही फैक्टर्स में हमारा 2 जो है वो कॉमन है, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, और LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर में जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं लोएस्ट टर्म, यानी कि जैसे यहाँ पे तो हमारा 2 कॉमन हो गया, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, लेकिन बाकी के भी हमारे जितने पावर्स बन रहे हैं अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो उनको भी हम इसी के साथ इंक्लूड करते हैं. तो 2 into 3 into 2 into 5, और इस तरह से हमारा जो LCM बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 3 6 6 2 12 12 5 60. Okay, so the LCM of 2 and 60 is, sorry, 6 and 20 is 60, and HCF of 2 and 20 is 20. अब आपको देखिए प्रूफ क्या करना था, LCM into HCF is equals to product of numbers. Okay, so the LCM is 60 and the HCF is 20, and the numbers we have taken that here are 6 and 20. As we multiplied them, 6 to the 12 means 120, and same as 6 20 is 120. So it is proved that LCM into HCF is equals to product of the numbers we have taken. Okay, same as from exercise 1.2
The second question is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. And the first question is 26 into 91. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 26 एंड 91. तो हम सबसे पहले 26 का फ्रैक्शन निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 2 into 30 and 91 is equals to 7 into 30. तो अब देखिए HCF क्या हो जाएगा. सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे. तो अभी हमने आपको बताया था कि दोनों ही फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा HCF होता है. तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा 30. और LCM के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कॉमन नंबर्स को एक बार लिखने के बाद जितने भी नंबर्स हमारे बचेंगे उनका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे. ओके. सो 30 टू 26 into 7. तो क्या हो जाएगा 182. ठीक है. तो हमारा HCF हो गया 30 एंड द LCM इज 182. सेम यहाँ पर हम देखिए दोबारा से LCM into HCF और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हम फाइंड करेंगे. तो क्या हो जाएगा ये देखिए LCM हमारा कितना है 182 और HCF कितना है 30. और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 26 into 91. 30 to 26 is 6 carry 2 13 8 104 into 106 6 carry 10 13 1 13 and 10 23. सेम एज हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 6 1 6 6 9 54 2 1 2 and 9 2 18. So 6 6 8 5 13 3 carry 1 1 1 2 2 3 6 6. तो जैसे कि आपने देखा कि दोनों साइड जब हमने LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया और उसी के साथ जो हमने नंबर यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में 26 एंड 91 जब हमने उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया तो दोनों ही कंडीशन हमारा यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा. ठीक है. गुड डे. थैंक यू. गुड डे.